Hello everyone. Welcome to the digital class of SST College of Arts and Commerce. I am Assistant Professor Padma Deshpande. Today I am going to teach the topic the subject International Banking and Finance, and in that I am going to cover module 1 some of the topics such as Introduction to International Finance, International Monetary Framework and Current Monetary Systems. So let's begin. First and foremost, let's understand what is international business. International business means the conduct of business activities beyond national boundaries. Basically क्या होता है, all the commercial activities या transactions that takes place between two countries such as sales, investments, transportation by government and private entities, we call it as international business. Now, why there is a need for international business? First and foremost, we need to understand that international trade comprises of different products and services. So every product goes through different stages. Yeah, we can say that it goes through a life cycle. First, a product is introduced into a market, then gradually it grows into that market. A stage comes when it has got good presence in the market. It is in the matured stage. Later on, the product's demand reduces, decline होने लगता है, and finally the product gets withdrawn from the market. Like we have seen so many examples. We can take the example of cameras. पहले हम लोग cameras के बहुत सारे varieties देखते थे, कैमरा मोबाइल्स होते थे. अब in our smartphone itself we are having camera phone. So कैमरा का एक इंट्रोडक्शन स्टेज था, वो ग्रोथ स्टेज था, वो एक टाइम पे बहुत अलग अलग इसके मॉडल्स अवेलेबल होते थे, एंड फाइनली नाउ वी डोंट सी कैमरा एज सच. वेरी फ्यू cameras are there, and majority of the people nowadays are using the inbuilt cameras that is there in their smartphones. So whenever a product goes into the decline stage, there is a need that the product has to be introduced into a new market. एक नया market को explore किया जाता है, and again that product goes through this entire life cycle. So because of this product life cycle, international trade has also come into existence. जब ये इस प्रोडक्ट का डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में कम हो जाता है, तब उसको नए मार्केट की जरूरत होती है. नाउ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपांशन? प्राइमरीली देयर आर थ्री मोटिव्स फॉर because of which international trade takes place. First and foremost is, as I told you, because of the product life cycle. Second thing is, if a product is unique, if a product or a service is unique, then it can be introduced into new markets. Then there are certain product attributes like unique attributes like Himalayan herbs है, medicinal plants है, इसकी बाहर के देशों में बहुत ज्यादा डिमांड होती है. So इसकी डिमांड कि जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, इसकी डिमांड बढ़ती है, और बिकॉज ऑफ दिस द ट्रेड टेक्स प्लेस. देन देयर आर अ नंबर ऑफ सर्विसेज लाइक बीपीओ सर्विसेज हैं. तो ये सब डिमांड जब बढ़ता है तब इंटरनेशनल ट्रेड आता है, मार्केट एक्सपांशन होता है. सेकेंड रीजन व्हाई the international trade takes place is because of the economic motive. Obviously बाहर के जब बाहर goods को export किया जाता है, so you are earning in foreign exchange. The reach of your product, your market share increases, the profitability of the organization increases. Then many times there are lot of factors of production which makes the production of goods and services very ये क्या होता है यहाँ पे, इसकी प्राइस वैल्यूएशन जो होती है वो सस्ता पड़ता है. लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है, तो उसका एडवांटेज लेने के लिए, लाइक जैसे अभी इंडिया में द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी आर हैविंग अबंडेंट लेबर. सो ये लेबर फैक्टर में क्या होता है, लेबर फैक्टर हम यूज कर सकते हैं, हम हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, एंड लेबर इंसेंटिव प्रोडक्ट्स को हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एंड दिस कैन बी सोल्ड. सो इकोनॉमिक मोटिव भी एक रीजन होता है. then kabhi kabhi there is low intensity of competition in the foreign markets. Then when we want to achieve large scale of economies, like large scale of
प्रोडक्शन, लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कभी जब R&D कॉस्ट को अगर स्प्रेड करना होता है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशली इन सॉफ्टवेयर, माइक्रो प्रोसेसर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इनमें जब R&D होता है तो ह्यूज कॉस्ट इज इनकर्ड। तो तब इस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए अलग अलग मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जाता है। देन there is a strategic motive. Strategic motive में क्या होता है? There is a saturation of domestic market. यहाँ पे मार्केट आपका सैचुरेट हो चुका है, आपको रिस्क को मिटिगेट करना है, आपको आपका डिपेंडेंस ऑन द डोमेस्टिक मार्केट को कम करके रखना है, आपके बिजनेस रिस्क को फैलाना है, तब आप इंटरनेशनल ट्रेड में कंपनीज go into international trade. Now let's understand what is international finance. International finance is a branch of economics that studies the dynamics of exchange rates, foreign investments. So basically ये part of economics है जो foreign investments, movement of foreign exchange rates जो होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में फंड्स एंड रिसोर्सेज की एलोकेशन कैसी होती है, फॉरेन इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में इंटरनेशनल फाइनेंस में पढ़ा जाता है। सो व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंटरनेशनल स्टडिंग इंटरनेशनल फाइनेंस? बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फॉरेक्स मार्केट, व्हाट आर द डिफरेंट लॉज, टैक्स सिस्टम्स, कल्चर्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट आर देयर इन डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट affect different countries, political issues क्या होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज जिसके वजह से हर कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट होता है। देन हाउ एक एलोकेशन ऑफ कैपिटल इज डन, गवर्नमेंट पॉलिसीज को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, वो कैसे चेंज करना होता है, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस होता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस? यहाँ पे प्राइमरीली देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज द फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट ये वो जगह है जहां पे बोरिंग एंड लेंडिंग ऑफ डिफरेंट करेंसीज, फॉरेन करेंसीज जैसी होती है, डॉलर्स, पाउंड, जापानीज येन, इनकी बोरोइंग एंड लेंडिंग की जाती है। Then there are different exchange markets. There are world over में there are different forex market. We can say that forex market is working 24/7 क्योंकि एक कॉन्टिनेंट में जब forex market बंद होता है, एक पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में जब बंद होता है तो दूसरी जगह पे फॉरेक्स मार्केट चालू रहता है। सो दैट्स व्हाई फॉरेक्स मार्केट वी कैन से दैट इट इज 24/7 और यहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज होती है। देन देर आर इंटरनेशनल इक्विटी एंड बॉन्ड मार्केट्स होती हैं जहां पे यहाँ पे भी प्राइमरी सेकंड मार्केट्स होती हैं जहां पे इक्विटी शेयर्स को इशू करके फाइनेंस रेस किया जाता है एंड बॉन्ड्स इशू करके भी फाइनेंस लाइक डेब्ट फाइनेंस भी रेस किया जाता है। नाउ इंटरनेशनल फाइनेंस ये बेसिकली इसका जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इट गेट्स रिकॉर्डेड इन समथिंग कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली अ बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इसमें इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द रेसिडेंट्स। Say for example, now if I am doing certain transactions like I am exporting certain goods, yeah, I am importing certain goods, all these transactions will get recorded in the balance of payments. So balance of payment क्या होता है? It's like a balance sheet. इसमें all the transactions of the residents of the countries with others, foreign entities के साथ जो transactions होती हैं वो इस balance of payment में record की जाती हैं। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो अ डबल एंट्री सिस्टम। जैसे हम बैलेंस शीट में हमारा एक डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट होता है, सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डबल एंट्री सिस्टम्स होती हैं। सो वॉट एवर दी पेमेंट्स दैट आर रिसीव फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज इज क्रेडिटेड एंड जो पेमेंट्स करते हैं उसको डेबिट किया जाता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बात तो जो भी एक्सपोर्ट्स होती हैं, इंपोर्ट्स होती हैं, ये सब इसके करंट अकाउंट में इसकी बुकिंग की जाती है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। देन देयर इज अ कैपिटल अकाउंट, इसमें ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट आर क्रिएटेड। से फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स ही परचेसेस अ प्रॉपर्टी इन वन ऑफ द फॉरेन लैंड,
तो वो जो ट्रांजैक्शन होगा वो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड इसमें और एक अकाउंट होता है विच इज कॉल्ड एज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या होता है, आपके कंट्री के जितने भी गोल्ड होते हैं, फॉरेन करेंसीज, हर कंट्री का जो मॉनेटरी अथॉरिटी होता है, सेंट्रल बैंक होता है, वो आके क्या करता है, कुछ रिजर्व्स रखता है जिसके बेसिस पे पूरा इकोनॉमी में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो इस रिजर्व्स अकाउंट के बेसिस पे बनाई जाती हैं। तो ये रिजर्व्स में कंट्री के पास कितना गोल्ड है, कंट्री के पास कितना फॉरेक्स है, कितने करेंसीज हैं, एसडीआरस हैं, ये सब इस रिजर्व्स अकाउंट में होता है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, देयर कैन बी अ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम मींस व्हाट, इम्बैलेंस हो सकता है। व्हेन दिस कैन अकर, when the country's export is more than the import, means there is a BOP surplus. तो यहाँ पे when there is a surplus, this finance can be used, in case of doing domestic expenditures, infrastructure development, all these factors के लिए ये surplus को use किया जा सकता है। But when the import is more, तो क्या होगा, means our expenditures are more than what we are earning. So this will lead to a BOP deficit. अब BOP deficit किस वजह से होता है, तो there are different reasons. First and foremost, जब इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाता है, एसेंशियल सर्विसेज, गुड्स, फूड आइटम्स, रॉ मटेरियल, जब कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, तब क्या होता है, कभी वो जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू फीड द पॉपुलेशन। एट दैट टाइम अ नंबर ऑफ थिंग्स हैव टू बी इम्पोर्टेड, या फिर कभी कभी कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है, हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज्ड मैन पावर को इंपोर्ट करना पड़ता है, बेटर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऑल दिस विल increase your imports, which will affect your BOP and can lead to BOP deficit. So BOP deficit को reduce करने के लिए, to correct the BOP deficit, the monetary authority of the country, monetary authority कौन होता है, the central bank of the country, that is अभी इंडिया में है तो RBI is the central bank, and the government together they form certain policies. Now these policies are called as monetary policies, fiscal policies, trade policies, then the devaluation या depreciation of the आपका exchange rate जो होता है, आपकी करेंसी का exchange rate होता है, उसमें devaluation या depreciation करते हैं। So by doing all these measures, the bank and the central government tries to maintain the stability of the economy. Now there are the second chapter in this module, I'm going to tell you about international monetary systems. अब ये monetary systems क्या होता है? It is a framework in which the countries borrow, lend, buy, sell and make payments across different political boundaries. And ये framework is very important because ये फ्रेमवर्क डायरेक्टली आपके बीओपी को, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करता है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ्रेमवर्क जो है, ये आके ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। प्री ब्रेटन वुड सिस्टम, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बोलते हैं, ब्रेटन वुड सिस्टम्स एंड पोस्ट ब्रेटन वुड सिस्टम्स बोलते हैं। सो गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या था, इसमें द सेंट्रल बैंक हैड द एक्सक्लूसिव राइट, जितना गोल्ड होगा उतना द सेंट्रल बैंक हैड द अथॉरिटी टू प्रिंट एंड इशू करेंसी नोट्स। जितना भी गोल्ड होता था वो सेंट्रल बैंक की कस्टडी में होता था। सेंट्रल बैंक आके एक ऑफिशियल प्राइस अनाउंस करती थी गोल्ड के अगेंस्ट, एंड जो लोग इट गेव द गारंटी टू बाय एंड सेल अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एट ऑफिशियल प्राइस। सो क्या होता था, करेंसी नोट्स जो होती थी वो अकॉर्डिंग जितना गोल्ड होता था उतना सेंट्रल बैंक उसको प्रिंट करती थी, और वहां यहाँ पे एक 1:1 का एक रेशो मेंटेन किया जाता था कि जितना गोल्ड होगा उतना करेंसी प्रिंट होता था। सो इसके कुछ एडवांटेजेस ये थे कि ये बहुत सिंपल सिस्टम था, इंप्लीमेंट करना आसान था, सिक्योर्ड पेमेंट्स होते थे, स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मेंटेन होती थी, और इसमें एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता था दैट इज कॉल्ड एज प्राइस स्पीशीज एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मतलब जितना गोल्ड होता था उतना की प्रिंटिंग करेंसी की होती थी। सो एक सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम ये होता था। बट
इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये थे कि इसमें क्या होता था कि जब गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने लगा तो इसका कोई भी प्रोविजन इस सिस्टम में नहीं था। एंड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर या वॉर या इकोनॉमिक डिप्रेशन, ऐसे सब सिचुएशंस होते थे तो गोल्ड खर्चा करना पड़ता था। एंड इससे क्या होता था, कंट्रीज फिर हर कंट्री के पास गोल्ड उतना ही होगा ऐसे जरूरी नहीं है, हर कंट्री की कैपेसिटी अलग होती है, अर्निंग्स अलग होती है, तो ये सिस्टम को मेंटेन करके रखना बहुत डिफिकल्ट होता था एंड दिस लेड टू रिसेशन। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। एंड देन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 44 मेजर कंट्रीज जो एकदम डेवलप्ड कंट्रीज थे एंड हु वर वेरी स्ट्रांग, इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग एंड इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत स्ट्रांग प्लेयर्स थे, दे मेट इन अ टाउन नोन एज हैम्पशायर विच इज इन यूएस एंड दे थॉट ऑफ अ न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉलिसी के जब इस फ्रेमवर्क को बनाया गया था तो तब दो मेजर इंस्टीट्यूशंस को भी बनाया गया था। वन वाज नोन एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द सेकेंड इंस्टीट्यूशन वाज नोन एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी या वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। अब ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में क्या किया था, इस सिस्टम में ऐसा तय किया गया था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कंट्रीज जितना आपके पास गोल्ड है उतना ही आपको करेंसी, आपके डोमेस्टिक करेंसी को प्रिंट करना है। यूएसए ने बोला कि इसमें यूएसए ने लीड लिया एंड यूएसए ने बोला कि हर कंट्री के पास यूएस डॉलर्स का रिजर्व होना चाहिए। यू डोंट हैव टू कीप गोल्ड रिजर्व, यू कीप यूएस डॉलर्स रिजर्व्स एंड ये रिजर्व्स के बेसिस पे आप आपके करेंसी नोट्स को इशू कीजिए। जो गोल्ड का जो 1 आउंस ऑफ गोल्ड का वैल्यू जो था वो USD 35 ऐसे फिक्स किया गया था। एंड यूएस की जो सेंट्रल बैंक है दैट इज यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, इसने एक अनकंडीशनल गारंटी दिया कि वो लोग बाय एंड सेल ऑफ अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड करेंगे एंड दिस कंडीशन वाज कॉल्ड एज गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज। एंड जो भी कंट्री जो होता था वो अपना करेंसी को जो है वैल्यू जो है, जैसे कि हम इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अगेंस्ट डॉलर करते हैं, तो वो जो वैल्यूएशन होता है उसको, उस सिस्टम को हम पेगिंग बोलते हैं कि हमने अपना करेंसी का वैल्यूएशन कोई दूसरे फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट वैल्यू किया है, तो इस सिस्टम को हम पेगिंग कहते हैं। सो ये कुछ फीचर्स थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम के। एंड सेंट्रल बैंक जो होगा वो आके डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट एक्टिवली करेगा। आईएमएफ ने ये अंडरटेकिंग लिया कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल कंट्रीज, सब कंट्रीज के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए मदद करेगा एंड जो भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस अगर होंगी तो उसको रेक्टिफाई करने में हेल्प करेगा। तो इससे क्या हो गया, हर कंट्री को सिर्फ रिजर्व ऑफ डॉलर रखना जरूरी था। इसके अलावा कंट्रीज कुड अर्न इंटरेस्ट। जो फेडरल बैंक थी उन्होंने ये भी बोला कि आपके पास जितना डॉलर होगा उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा करके। सो इससे क्या हो गया, मॉनेटरी डिसिप्लिन एस्टैब्लिश हो गया एंड यूएसए emerged as a very strong player. However, this system also failed because यहाँ पे भी कहीं यहाँ पे भी क्या था, गोल्ड तो था ही, मतलब डॉलर्स रखना है प्लस गोल्ड भी रखना है। यूएसए ने क्या बोला, आपके पास गोल्ड नहीं है तो ठीक है डॉलर्स रखो, बट combination of both where every country had to keep. Again रिवीजन ऑफ जो, क्योंकि यूएसए ने क्या बोला कि आप क्या करो, आपका जो गोल्ड है वो हमको दो गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी कॉस्ट के अंदर, और जितना आपको चाहिए उतना डॉलर्स लेकर जाओ। अब यहाँ पे भी क्या हो गया कि जब भी गोल्ड का प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया तो इसकी रिवीजन के लिए कोई भी गुंजाइश इस सिस्टम में भी नहीं थी। एंड टू ऐड टू इट, यूएसए के पास से डॉलर्स बाहर बहुत जाने लग गए थे, तो दिस लेड टू बीओपी प्रॉब्लम्स इन यूएसए। यूएसए का ट्रेड डेफिसिट में जाने लग गया और उनके बीओपी पे उसका इफेक्ट होने लग गया। सो द बीडब्ल्यूएस सिस्टम भी जो है वो आके फेलियर हो गया। इसके बाद भी कुछ मैकेनिज्म्स आए जैसे कि स्मिथसोनियन एग्रीमेंट हुआ, बट वो भी फेल हो गया। सो डिफरेंट
कंट्रीज ने जो है वो अलग अलग एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं। कोई कंट्रीज फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करता है, कोई कंट्रीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो करता है। अब फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, द सेंट्रल बैंक एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फोर्सेस। फिक्स एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक पूरा का पूरा मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है और वो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है। एंड इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट द सेंट्रल बैंक डज नॉट पार्टिसिपेट। यहाँ पे इट इज द मार्केट मैकेनिज्म्स जो होती हैं वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती हैं। So in fixed exchange rate, the central bank will buy and sell currencies, and it is the responsibility of the central bank to maintain adequate foreign currency. इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ट्रेड एक्टिविटीज स्मूथ चलती हैं, मॉनेटरी डिसिप्लिन रहता है, करेंसी फ्लक्चुएशन के चांसेस नहीं होती है, स्पेक्यूलेशंस नहीं होता है, मोर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स कैन टेक प्लेस। However, this system is also not that strong, because इसमें क्या होता है, every country has to maintain lot of foreign exchange with them. This will lead to BOP problems. And अगर macro economic changes जो होती हैं, जैसे कि कोई बड़ी आपत्ति आ गई या कोई there is lot of unemployment, ऐसे कुछ situations होती हैं, तो ये system mechanism में वो self adjusting नहीं होता है, BOP पे इसका इफेक्ट गिरता ही है। सो एंड सेंट्रल बैंक को बार बार रेगुलर इंटरवीन करना पड़ता है। एंड ये मैकेनिज्म सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म नहीं है, मतलब जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई होता है, ऐसा नहीं होता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। द सेकेंड सिस्टम दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे वैल्यूएशन ऑफ करेंसी होती है, करेंसी की ऑफिशियल प्राइस फिक्स नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू जैसे मार्केट में आपके करेंसी का डिमांड होता है। इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में आपके करेंसी का जैसा डिमांड एंड सप्लाई होता है, उस अकॉर्डिंगली आपकी करेंसी की वैल्यूएशन होती है। सो इसके एडवांटेजेस ये है कि ये लिक्विडिटी को बूस्ट करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज इजी बन जाती हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेस आसानी से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेस को अच्छे से यूज कर सकते हैं, ज्यादा फॉरेक्स रखने का जरूरत नहीं है। क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता था, हर कंट्री को मॉनेटरी कुछ रिसोर्सेस अपने पास रखने पड़ते थे, क्योंकि उसके बेस पे ही वो अपनी करेंसी की वैल्यूएशन कर सकते थे। बट यहाँ पे वो रिसोर्सेस जो मॉनेटरी रिसोर्सेस जो होती थी उसको सेंट्रल बैंक को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ज्यादा ट्रेड होने के चांसेस होते हैं और कंट्री का जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो ये सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है। However, ये सिस्टम भी डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्यूलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? स्पेक्यूलेशन यानी कि जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है, यहाँ पे स्पेक्यूलेट किया जाता है, अंदाज लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली द डिपेंडिंग ऑन द राइज या फॉल इन द प्राइजेस शेयर्स की खरीदारी की जाती है। तो ये मार्केट भी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है, ये भी यहाँ पे स्पेक्यूलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके वजह से इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के लिए भी रिस्क फैक्टर, ट्रेड रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन, अगर करेंसी की बार बार प्राइस चेंज होती रहेगी तो वो लोग किस बेसिस पे ट्रेड को कैरी ऑन करेंगे, किस बेसिस पे पेमेंट्स करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। सो दिस इज नॉट एन एडवांटेजेस सिचुएशन फॉर द importers and the exporters. फिर there are chances of depreciation in the price value of the currency, and ये इकोनॉमी को volatile बनाता है, and it may lead to more deficit in the BOP. So basically today I have covered the three topics, that is international introduction to international banking, then the international monetary framework, and मैंने आपको जो current exchange rates जो थी, that is the fixed exchange rate and fluctuating exchange rates के बारे में बताया। In the next module we will be learning in detail about what are the जो exchange rates that are practiced world over, and we'll be learning about further more topics. Thank you so much.